Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody here. May I invite Sister Heba to introduce AMP to our audience. Assalamu alaikum. Hello everyone. I'll be giving a brief introduction about AMP. AMP, which stands for Association of Muslim Professional, is a non-profit organization which was established in 2007 by a small team of 4 members. Alhamdulillah, we have completed 13 years now. The foundation of AMP was laid with the mission to empower underprivileged and to form a robust society and work together for the progress and development of our nation, India. AMP was first registered in India as AMP India, and Alhamdulillah, it has grown and now registered in USA, UK, and Australia. Our primary focus has always been on education and professional empowerment. Apart from this, we also focus on economic awareness, social responsibility, and recognition. We have a vision to impact 10 million lives by 2030. Can we go to next slide, please? In order to see anybody's achievement, it's always good to see with respect to the stats, with the numbers, with what we have achieved. If we want to see AMP's achievement, we can comprehend by these numbers procured in each chapter. So let me take you through all these numbers. The very first chapter, which is Skill Development Program, SDP, is a program where AMP volunteers go to school and take sessions and talk to students about career development, career planning, examination preparation, soft skills training, and many more. Apart from this, there are teacher training and parenting workshop also conducted, which help students at their home as well as at school. AMP has conducted with 800 plus schools and conducted 2,800 plus skill development lectures, which has benefited 281,000 students across the nation. AMP has also conducted 110 plus teacher training and parenting workshop. The second program is Employment Assistance Cell, EAC. AMP in this chapter organizes job fair, job drive. We also conduct employability training to help the students to get the jobs and get employed. Here, AMP has organized 360 plus job fairs and job drive and 220 plus employability training, which benefited 17,000 plus degree students, and in total 21,000 plus candidates got employment. The third chapter is Scholarship and Self-Employment. Here, with the help of Zakat funds, AMP has helped 800 plus students with higher education scholarship, 860 plus orphan students with their education fee. AMP has also empowered 425 plus families to set up their own small business. In the fourth chapter, which is AMP Resource Center, AMP leveraged the humongous professional volunteers and members base at AMP. We set up an online career counseling center. Here, there are 660 plus career counselors whose contact details and availability is given on the website. 2,500 plus students have been counseled till date. The AMP website has 50 plus documents on career guidance, and AMP has distributed 1,500 plus career charts for empowering students. The fifth one is awards and partnership. Here, AMP recognizes and acknowledges our community people. It's always important and very crucial to appreciate the people who has done good for the society. For example, every year from past 5 years, AMP identifies 100 teachers across India who goes beyond and above to deliver education and empower students. Can we go to next slide, please? AMP has recently done 3 digital initiatives. This was done post-pandemic
where people across different sectors were hit hard due to the deadly disease and lockdown. AMP in this tough situation came ahead and launched indiazakat.com, the indiamentors.com, and amppowerjobs.com. This was done to battle this tough situation and bring ease in people's life. The very first portal, which is indiazakat.com, was launched last Ramzan, and it is a first zakat crowdfunding platform which brings zakat seekers and zakat givers together. There is a thorough background verification of zakat seekers done by AMP, which is the most crucial phase in zakat, and it is often neglected by people. The second portal, which is indiamentors.com, helps in development of professional community by bringing in the concept of mentorship. A mentor who is an expert and well versed in his field chooses 5 mentees and groom them for 3 months. The third portal, which is AMP Power Job, is a free portal where the professionals list the job openings in their organization and the job seekers can directly benefit from it. Can we go to next slide, please? We have a very huge presence in the nation right now. AMP now has 140 plus active chapter, which is spread across 16 countries, 26 states with 6,000 plus active members. AMP has also made its digital presence and has 1,25,000 plus professionals connected. Can we go to next slide, please? So this was all about AMP. These are the details through which you can reach out to us. And we are always willing and looking for people to join us. If you are someone who is interested in serving the community and society, if you are someone who is ready to invest just a few hours at your convenience, if you are someone who wants to connect to the best brains in the world, if you are someone who likes to network with the best brains in the world, and if you are someone who wants to serve others and make this dunya and akhirah better, then AMP is the right place for you. Please do reach out to us. AMP is a volunteer-based organization, and we are always in need of an extra hand. Thank you so much. Over to you, Khalil Bhai. Jazakallah khair, Sister Hiba. Now we are ready for the main talk by Dr. Zulfikar Sheikh. Before that, I will request Kashif Bhai to introduce the speaker. Assalamu alaikum. Once again, a warm welcome and good evening to all the participants and today's speaker, Dr. Zulfikar Said. About today's speaker introduction, Dr. Zulfikar Said is having 10 years of experience in the field of education, skill development, and career counseling. He is alumnus of U.S. Department of State and former India's visiting research fellow at Hebrew University of Jerusalem. Dr. Zulfikar has many publications in the academic and policy literature with more than 20 journal articles or reports and policy briefs. He is a recipient of numerous prestigious scholarships. He has traveled more than 20 countries to deliver and present his works. He previously worked as an education expert at the Asian Development Bank ADB, founded Teachers Training Program TTP Meghalaya. Dr. Zulfikar received a doctorate in development economics from Aligarh Muslim University. Jazakallah khair, Kashif Bhai. Before I hand over to the speaker, I will let everybody know that if you want to ask any questions, please type in the chat box. We will take the questions at the end of the talk. Dr. Zulfikar Bhai, up to you. Assalamu alaikum, everybody. Am I audible, loud and clear? Just mic check. Yes, sir. Yes, sir. You are. Thank you very much, Sayyid Khalil Ahmed Saab, Kasif Wali Saab, Hiba Nomani, and Rajasthan chapter's MP's lead, Chan Muhammad Sahab, Sakil Sahab, and all other people who are part to organize this wonderful webinar.
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सेप्ट, मैं आप सब लोगों को जो है आप सबको सलाम पेश करता हूं। जैसे कि खलील साहब ने बताया, कासिफ साहब ने बताया, आज जो है मैं इस सेमिनार आपको जो है AMU के गाइडेंस के बारे में जो है इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जो है वो हमारी कौम के बीच एक ब्लेसिंग बन के आया है। अल्लाह ताला की एक नेमत है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफेशनल शामिल है, ऐसे क्वालिफाइड लोग शामिल है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन को अब तो माशाल्लाह से हर जगह पे, हर घर घर जो है AMP को लोग जानने लगे हैं। ये एफर्ट बहुत पहले शुरू हुआ था, अब जो है एक फ्रूटफुल जो है उसका जो है नतीजे जो है हमारे सामने नताइज जो आ रहे हैं। AMP के सारे होद्देदारान जो है रज्जाक भाई इदरीसी साहब की गाइडलाइंस में जो भी आप काम कर रहे हो सबको मुबारकबाद में पेश करता हूं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, जब हिबा जी बता रहे थे हमें कि AMP के बारे में, ये फख्र की बात है 2,30,000 बच्चों को रीच करना, इतने सारे प्रोग्राम्स करना। तो आप लोग भी जुड़िए और वॉलंटियर्स बनिए। और इस जो मुहिम जो है जो हमने शुरू की है उसका जो मेन मकसद यही है कि आपको सही काउंसलिंग दी जाए, स्किलिंग की जाए। और ये जमाना जो है वो कंपटीशन का है, टेक्नोलॉजी का है। आने वाले 10 साल में हमारी कंपटीशन जो है वो इंसानों से नहीं बल्कि मशीन से होने वाली है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम नई टेक्नोलॉजी को सीखें, नए साइंस को एक्सेप्ट करें, दीन और दुनिया को साथ में रखते हुए हम आगे बढ़े। और उसमें मुझे लग रहा है कि AMP एक बहुत अहम रोल जो है वो अदा कर रहा है और हमें साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें। आप सब लोगों ने, मैं यकीन मानता हूं कि आपने अलीगढ़ का नाम सुना होगा, सर सैयद साहब का नाम सुना होगा। मेरी जो स्टोरी कासिफ साहब सुना रहे थे आपको, छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, ये उनका बड़प्पन है जो हमें इतनी इज्जत बख्शी उन्होंने, वो यहाँ से शुरू हुई थी। अलीगढ़ से मेरी स्टोरी शुरू हुई थी। उससे पहले मैं मदरसा में पढ़ा था, 12वीं में फेल भी हो गया था। जब मैं अलीगढ़ आया तो मुझे एक नई दुनिया को नई आंख मिली देखने को। और उससे जो है मैं अलीगढ़ से अमेरिका, अमेरिका से इजराइल, इजराइल से तुर्की और तकरीबन बहुत सारे मुल्क में जो है स्कॉलरशिप और फेलोशिप के जरिए और फाइनली PhD की। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको भी, आपके बच्चों को भी, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आप में भी कोई जुल्फी पैदा हो, मुझसे बेहतर पैदा हो, और आप जो जो रिसोर्सेस अलीगढ़ में अवेलेबल है आप उसका यूटिलाइज कर सकें। और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये प्रेजेंटेशन को गौर से सुनिए, सारी इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पार्टिसिपेंट्स नहीं बल्कि एक एम्बेसडर बन के, जब 7:30 बजे हम ये खत्म करें इस वेबिनार को, तो आपके पर एक जिम्मेदारी है कि आप भी अपने अतराफ में, अपने नेबरहुड में जो ऐसे बच्चे हैं जो अलीगढ़ में पढ़ना चाहते हैं या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आप उन्हें गाइड कर सको। एटलीस्ट आप 5-5 लोगों से बात करें। अगर हम 50 लोग यहाँ पर है, 5-5 और लोगों से हम बात करें इसके बारे में, तो जो है ये मल्टीप्लाई होके बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको अलीगढ़ के बारे में एक छोटी सी ग्लिम्पसेस देना चाहता हूँ, और उससे बेहतर कुछ और वीडियो नहीं हो सकता कि अलीगढ़ का तराना ही आपके सामने पेश किया जाए, और जिसके अंदर सारे फोटोग्राफ और सारी बिल्डिंग्स भी है। इससे आपको एक रूबरू हो जाएंगे अलीगढ़ से, एक फेमिलियरिटी हमारे बीच में आ जाएगी। तो आप ये जो है, मजाज साहब ने इसको लिखा था, ये तराना जो है हर अलीग के दिल में बसता है। आप में से बहुत लोगों ने शायद सुना होगा पहले। ऑडियो आ रहा है? कासिफ साहब, ऑडियो आ रहा है? जी जी, आ रहा है। इट्स क्लियर। क्लियर। ये आ रहा Thank you.
बिल्डिंग्स देख रहे थे, जो चमन देख रहे थे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इसमें हर टाइप की जो डिपार्टमेंट्स है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 19 फैकल्टी है, 90 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है और जो है वहाँ पे 25 सेंटर्स है, 3 आउटसाइड सेंटर्स है, मुर्शिदाबाद, मुल्लापुर और किशनगंज में 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट है, 5,500 से ज़्यादा फैकल्टी है, 8,000 जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ है। ये सब जो है स्टार्ट हुआ था एक इंसान की मेहनत से, जिनका नाम सर सैयद अहमद खान।
सर सैयद साहब ने जब इसका बीज रोपा था, बोया था, तब कौम जो है इतनी ही वहां पे उतनी जरूरत थी एजुकेशन की, और उन्होंने रास्ता दिखाया। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज का स्थापना वहां पे हुई। फिर 1920 में 467 हेक्टेयर्स में यूनिवर्सिटी जो है उसको स्टेटस मिला। आज इस यूनिवर्सिटी जो है मुर्शिदाबाद, मल्लापुरम और किशनगंज 3 अलग सेंटर्स, उसके और सेंटर्स भी है। 300 कोर्सेज चल रहे हैं, 12 फैकल्टीज भी है, 98 टीचिंग डिपार्टमेंट्स है, 3 एकेडमीज हैं और 15 सेंटर्स है। इस यूनिवर्सिटी को बनाने का एक इतिहास है और एक स्ट्रगल है, जिसको सर सैयद अहमद खान साहब ने एक बखूबी अंदाज से उसको निभाया। जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिससे काम लेता है, यही तरह से सर सैयद साहब से ये काम लिया गया, और आज इस यूनिवर्सिटी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मकाम हासिल है इसका। सबसे पहले बात करते हैं हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की। जैसे कि कई सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो प्रोग्राम्स होते हैं, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, ये सारे प्रोग्राम एएमयू में चल रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट फैकल्टीज भी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइंसेस में एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स है, कॉमर्स में MBA, MCOM, टूरिज्म से रिलेटेड प्रोग्राम है, हॉस्पिटलिटी में रिलेटेड प्रोग्राम है। इंटरनेशनल स्टडीज की एक नई फैकल्टी अभी स्टार्ट हुई है, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, स्पेनिश डिफरेंट लैंग्वेज सिखाई जाती है, और उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और स्ट्रेटेजिकल स्टडीज जो है वो भी सिखाई जाती है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बहुत पुरानी है अलीगढ़ की, इसमें इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, पर्शियन फिलोसफी, कुरानिक स्टडीज और दूसरी लैंग्वेजेस उसको सिखाया जाता है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में डिफरेंट टाइप के MBAs जो है वो है, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस है, इस्लामिक बैंकिंग है, वो काफी फेमस है। फैकल्टी ऑफ साइंस में सोशल साइंस के जितने भी प्रोग्राम है आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में देख पाएंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स भी है, जहाँ से PhD मैंने की है इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स दोनों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अवेलेबल है। B.Ed जो है वो 3 सेंटर में है, एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी है, केरला में भी है और बंगाल में भी है, मुर्शिदाबाद। तीनों जगह B.Ed हो रहा है, और फिजिकल एजुकेशन के भी वहां पर जो है MPA प्रोग्राम है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी और उसके बाद फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी है, जिसमें थियोलॉजी के अगर आप थियोलॉजी पढ़ना चाहो तो वहाँ पे अलीगढ़ की थियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत फेमस है। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की स्टडी कर पाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, वाइल्ड साइंस, म्यूजियोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। और फैकल्टी साइंस में जो आपके साइंस के सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट तकरीबन यहाँ पे है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन एक नया एडिशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अलावा ये सारी इंफॉर्मेशन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी एप्लीकेशन स्टेटस कैसे किया जाए, कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन ली जाए, एप्लीकेशन कैसे किया जाए, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में आएगी। आप अपने क्वेश्चंस जो है, जिससे कि खलील साहब ने बताया स्टार्टिंग में, आप अपने क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, क्योंकि जब भी काउंसलिंग के प्रोग्राम होते हैं खास करके क्वेश्चन आंसर ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन तो जनरल इंफॉर्मेशन है। बहुत से लोग आप जानते ही होंगे, बहुत से लोग जो आप नहीं जानते हो, तो आप बस ये बात सुनकर एएमयू की वेबसाइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जो जरूरी बात है वो ये है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, वहां पे किस तरह से जाया जाए, और आपके जो सवाल है उसको आप जरूर चैट बॉक्स में लिखते रहिए, उसके सारे जवाब इंशाअल्लाह ताला आपको दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिए दूसरी स्लाइड जो है वो खास करके इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक प्रोग्राम्स है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वो IIT के बराबर है, वो IIT को डीम्ड IIT के समकक्ष मानी जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप की जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है वो सारी ब्रांचेस अवेलेबल है। बीटेक प्रोग्राम अवेलेबल है, BArch अवेलेबल है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और एमटेक के सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी प्रोग्राम्स जो है अवेलेबल है। जब आप मास्टर में देखेंगे तो उसमें इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें आप जो है इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, पावर सिस्टम
और एमटेक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, थर्मल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और खास करके नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोग्राम, पॉलीमर साइंस, ये न्यू एडिशन है। तो बहुत सारी रेंज ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल है इन इंजीनियरिंग में। यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक भी है, 2 पॉलिटेक्निक है, एक जनरल पॉलिटेक्निक और वुमेन्स पॉलिटेक्निक। विमेन्स पॉलिटेक्निक में ओनली गर्ल्स हैं, वहाँ पे जो है वेराइटीज ऑफ डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग किए जाते हैं। जो डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग आप 12th के बाद भी कर सकते हो वहाँ पर। सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, लेदर एंड गुड्स, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, और अभी फिलहाल जो है एडवांस डिप्लोमा फूड टेक्नोलॉजी का, गारमेंट टेक्नोलॉजी का, और इंटीरियर डेकोरेशन और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये चीज भी नया एडिशन हुआ है दोनों पॉलिटेक्निक में, पॉलिटेक्निक और वुमेन्स पॉलिटेक्निक में। और उसके अलावा फिलहाल ये 4-5 साल से पहले जब जमीरुद्दीन शाह साहब वाइस चांसलर थे, तब कम्युनिटी कॉलेज स्टार्ट की गई थी। कम्युनिटी कॉलेज में क्या है कि आप ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, इसमें जो है वोकेशनल प्रोग्राम्स जो है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें ये कुछ प्रोग्राम्स है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज शू डिजाइन, और भी नए प्रोग्राम्स उसमें आ रहे हैं। फिलहाल अभी ये गाइडलाइंस में है, जो उसकी 2021 एडमिशन प्रोसीजर है उसमें ये अवेलेबल है। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, सर जियाउद्दीन डेंटल कॉलेज और हकीम अजमल खान टिब्बिया कॉलेज, ये प्रोग्राम जो है मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन में भी है। और जो मेन स्ट्रीमिंग प्रोग्राम है, जितने भी MBBS, BDS, BRRT, पैरामेडिकल, नर्सिंग, और पैरामेडिकल में खास तौर से जो है उसमें वाइड रेंज है, ऑप्टोमेट्री है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस थेरापी है, मेडिकल रेडियोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, फिजियोथेरापी है, जिसकी आप देख रहे हो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा डिमांड है ये प्रोग्राम की। और पैरामेडिकल कोर्सेज के डिप्लोमा भी हो रहे हैं, और उसके बाद मास्टर प्रोग्राम भी है, सारे डिफरेंट, अगर आप MBBS के बाद ज्वाइन करना चाहो तो। और फैकल्टी ऑफ यूनानी है, उसमें भी जो है बहुत सारे BUMS के प्रोग्राम हो रहे हैं। और AMU की जो है यूनानी मेडिसिन बड़ी फेमस है, आपने दिमागी का नाम सुना होगा, वो AMU की ब्रांड है। और भी बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे यूनानी मेडिसिन और टिब्बिया कॉलेज से जो है काफी फेमस जो है वहाँ पे है। वो काफी हकीम जो है, हकीम जिल्लुर रहमान है, जिनको पद्मश्री मिला हुआ था, इससे काफी शख्सियत जो है यहाँ पे पढ़ चुकी है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ AMU में सेंटर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिसमें PG डिप्लोमा चल रहे हैं बहुत सारे। आप देखिए बहुत वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम चल रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जर्नलिज्म, टैक्सेशन, म्यूजियोलॉजी, सोलार इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एनिमेशन मल्टीमीडिया, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, कॉर्पोरेट लॉज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, असेट वैल्यूएशन, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्निक्स, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में चल रहे हैं। और फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की हमने बात की, तो इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लॉ है जो काफी फेमस है, वहाँ पे BA LLB का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 5 साल का। तो वो भी 3 सेंटर में हो रहा है, AMU में, मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद। और कुछ पार्ट टाइम प्रोग्राम भी है जो AMU में चल रहे हैं। उसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में खास करके लिंग्विस्टिक और ट्रांसलेशन और प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज के प्रोग्राम है, जो आप लैंग्वेज सीखना चाहो। डिप्लोमा भी इस तरह के है। और आप जो है कुरानिक स्टडीज में वेराइटीज ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो, अरेबिक, कैलियोग्राफी, और डिप्लोमा इन वेस्ट ईस्टर्न स्टडीज, सर्टिफिकेट इन टर्किश, और दूसरे सर्टिफिकेट प्रोग्राम से जो पार्ट टाइम प्रोग्राम में है। आप देखिए AMU में एंट्री पॉइंट 3 है खास करके। आप स्कूल भी वहां ज्वाइन कर सकते हो, 6 क्लास, 8 क्लास। तकरीबन AMU इज द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कि जो स्कूल बोर्ड भी संभालती है। अलीगढ़ में जो है मिंटो सर्कल जो है सैयदना ताहिर सैफुद्दीन स्कूल, वो काफी फेमस है। तो आप 6 क्लास और 8 क्लास दोनों में, 8 एंड 6 दोनों में वहां पे एंट्रेंस एग्जाम होती है, वहां पे एडमिशन हो सकता है। और इंटर जिसे 11th हम कहते हैं, वहां पे इंटर कहते हैं, +2 कहते हैं, हमारे यहाँ 11th और 12th कहते हैं। सो ये सेकेंडरी स्कूल है वहां पे, सेपरेटली बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, जिसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। मिंटो सर्कल जो है वो बॉयज के लिए है, वो बहुत फेमस है क्योंकि वहां से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत निकली है, जाकिर हुसैन साहब है और हामिद अंसारी साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां से पढ़े हैं। आप +2 जो है वहां पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 10th में जो है 10th के बाद एग्जाम होती है,
उसमें 3 कैटेगरी पड़ती है। आप वहां से डिप्लोमा में भी जा सकते हो, या फिर आप कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में जा सकते हो, जिसको इंटर कहते हैं। वहाँ पे अल्लामा इकबाल हॉल है, जो हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह भी है। वहाँ पे जो है आप वहाँ पे रेसिडेंशियल, अलीगढ़ पूरी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे सारे हॉस्टल और हॉल्स की सुविधा भी है। तीसरा जो एंट्री पॉइंट है वो है ग्रेजुएशन का। अगर आपने 12th कर लिया है तो फिर आप ग्रेजुएशन में एंट्री कर सकते हैं। जैसे सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए, उसके टेस्ट होते हैं। 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसके बारे में हम और बात करेंगे। एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट होता है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, एक डिपार्टमेंट टेस्ट होता है जो डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है, और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें टेस्ट की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं। चौथा एंट्री पॉइंट है वो है मास्टर्स। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप मास्टर में वहां एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट एंट्री पॉइंट है वो है पीएचडी। अगर आपका मास्टर है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंट्री पॉइंट है, जो अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ही भेजना चाहते हो तो आप 11th में भेज दीजिए, 10th में भेज दीजिए। इससे फायदा एक ये होता है कि एएमयू में इंटरनल कोटा है। अगर आप एएमयू से ही पढ़े हो, आपने 12th एएमयू से किया है, तो आपका ग्रेजुएशन में आपको इंटरनल कोटा मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो मास्टर में आपको इंटरनल कोटा मिलेगा। अगर आपने मास्टर किया है तो पीएचडी में इंटरनल कोटा मिलेगा। अगर आप इंटरनल स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो उसकी अलग लिस्ट होती है, उसको इंटरनल कोटा किया जाता है। और जो लोग बाहर से अप्लाई करते हैं उसको एक्सटर्नल कोटा कहा जाता है। इसके अलावा एएमयू में कुछ रिजर्व कैटेगरी भी है, जैसे कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, आप जो है डिफरेंटली एबल्ड है तो आपके लिए 5% सीट रिजर्व्ड है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन है आप, तो आपके लिए कुछ सीट रिजर्व्ड है। अगर आप डिबेटर है और आप कोई टैलेंट कैटेगरी में आते हो तो भी उसके लिए आप कुछ सीटें ईयरमार्क की गई है, उसमें कुछ प्रोग्राम में है। और इनवाइटेड कैटेगरी है जिसमें यूनिवर्सिटी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट होता है उनको बुलाती है, जिसमें ट्यूशन फीस और सारी फीस जो है वो यूनिवर्सिटी पे करती है। जो मदरसा पास आउट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और मदरसा ब्रिज प्रोग्राम का एक वहां पे एक प्रोग्राम, मदरसा ब्रिज प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है और वहां से आपको डायरेक्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स में आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के अलावा जो है यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन और चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई की भी कैटेगरी है। लेकिन खास करके आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है बिलोंगिंग टू डिस्टेंट स्टेट कैटेगरी, जिसको कहते हैं डीएस। डीएस वो है जो यूपी से एडजॉइनिंग स्टेट नहीं है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, ये डिस्टेंट स्टेट में नहीं आएंगे। तमिलनाडु, गुजरात, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, ये यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है, उसको कहते हैं डिस्टेंस स्टेट। तो डिस्टेंट स्टेट की कैटेगरी है, उसमें आपको अलग से उसका लिस्ट निकलता है। और उसमें ये सिर्फ सिंपली आपको जो है अपना कोई भी लाइसेंस या पैन कार्ड या आधार कार्ड वहां पे देना होता है कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ और ये स्टेट डिस्टेंट कैटेगरी में आता है। तो उसका एक अलग लिस्ट होता है जिसमें रिजर्व है। क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे वो चाहते हैं कि सारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो। ये खास करके उन बच्चों को इनकरेज करने के लिए कहा गया है कि ये स्टेप लिया गया है कि जहां से स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं। जैसे कि गुजरात से 1, 2 या 3 स्टूडेंट्स थे जब मैं पढ़ता था वहां पर, बहुत ही कम बच्चे जाते। उसी तरह राजस्थान से ही बहुत कम जाते हैं, महाराष्ट्र से ही बहुत कम बच्चे जाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत कम बच्चे जाते हैं और आपके लिए वहां पे कैटेगरी भी है, आप डीएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एएमयू के जो सेंटर के जो टेस्ट होते हैं, जो सेंट्रलाइज टेस्ट होते हैं, उसके जो स्टडीज जो है अवेलेबल, जो एडमिशन टेस्ट सेंटर है वो सिर्फ अलीगढ़ में नहीं है, बल्कि लखनऊ में, श्रीनगर में, कोझिकोड में, कोलकाता में, पटना में, यहाँ पे भी होता है। और इंजीनियरिंग के जो है उसमें कोलकाता में भी होता है। लेकिन गुजरात से जो सबसे नजदीक है वो जो है वो अलीगढ़ ही है, और सबसे फिजिबल है जो अलीगढ़ है। और एमपी या और भी जो गुजरात और दूसरी जो राजस्थान और दूसरे स्टेट है, वहां पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं एक सेंटर लेने के लिए, टेस्ट सेंटर लेने के लिए। क्योंकि खास करके जो वेस्टर्न इंडिया के और साउथ इंडिया के जो है उनके लिए, खैर साउथ में कोझिकोड है केरला में, लेकिन बाकी सबको जो है अलीगढ़ में टेस्ट सेंटर जो है वही एक ऑप्शन रह जाता है बाकी। तो ये सारे सेंटर्स है, आप देखिए ज्यादातर टेस्ट जो है वो सारे कोर्सेज के अलीगढ़ में होते हैं। उसके अलावा भी और भी सेंटर है जो बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, वेस्ट बंगाल में है, केरल में है, गुवाहाटी में है। तो यहाँ पे जो है कुछ सेंटर्स है जहाँ पे भी आप टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, सेंटर्स अडॉप्ट कर सकते हो।
हम जो है कुछ चीजें एएमयू के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एएमयू फुल्ली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के हॉल्स है, जैसे विकारुल मुल्क हॉल, मोहसिनुल मुल्क हॉल, सर जियाउद्दीन हॉल, सर सुलेमान हॉल। तो कोई भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जब एडमिशन लेता है तो उसको हॉल अलॉट कर दिया जाता है। उस हॉल्स में बहुत सारी हॉस्टल्स होती है और वहाँ पे आप रह सकते हो। और हॉस्टल बहुत ही सब्सिडाइज होती है, बहुत ही कम पैसे होते हैं उसके, फीस ज़्यादा नहीं होती है। उसके अलावा आपको हॉस्टल लाइफ के अलावा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत आपको देखने मिलेगा। वहाँ पे कल्चरल एजुकेशन सेंटर है, डिबेट डिस्कशन के बहुत सारे मौके हैं, राइडिंग क्लब है, स्विमिंग क्लब है, स्पोर्ट्स के सेंटर्स है, क्रिकेट पैवेलियन है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है। सो बहुत सारी स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। एएमयू में खास करके आपको 2 टाइप की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। एक तो आप गवर्नमेंट के थ्रू मेरिट स्कॉलरशिप ले सकते हो, जिससे आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में, वहाँ यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप डिवीजन है, वो आपको हेल्प करते हैं। और एक एलुमनाई एसोसिएशन की स्कॉलरशिप है, जैसे कि हमारा एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, एएमपी है। उसी तरह एएमयू के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एलुमनाई एसोसिएशन फ्रॉम मिशिगन, एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ डेट्रॉइट, एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एलुमनाई एसोसिएशन स्कॉलरशिप देते हैं। ये आपको डाइनिंग के लिए देते हैं, ट्यूशन फीस के लिए देते हैं, मेस के आपके जो है खाने के लिए या हॉस्टल फीस के लिए, ये सारी स्कॉलरशिप्स आपको वहाँ पे मिलती है। आपके एकेडमिक सपोर्ट के लिए मौलाना आजाद लाइब्रेरी है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एशिया की बड़ी लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी है और वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े हॉल्स हैं। तकरीबन 18 घंटे, 17 घंटे जो है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चलती रहती है। सेंट्रलाइज़्ड एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, जिसमें सारी किताबें अवेलेबल है। कंप्यूटर सेंटर्स है, जहाँ से आपको वाई-फाई और अब तो यूनिवर्सिटी फुल्ली वाई-फाई हो गई। पहले सा वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर में भी आप अभी भी कंप्यूटर सेंटर में बहुत सारी सुविधा है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है वैराइटीज़ ऑफ कल्चरल फेस्ट और स्पोर्ट्स के फेस्ट होते हैं होल एक्टिविटी में। बहुत सारी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ होती है, लैंग्वेज और टेक्निकल करियर गाइडेंस के प्रोग्राम होते हैं। यूनिवर्सिटी की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ है। वहाँ पे आईएएस और आईपीएस और सिविल सर्विसेज के कोचिंग के लिए रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी भी है और आप के जॉब और प्लेसमेंट के लिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी है सेंट्रलाइज़। जो सारी इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको हेल्प करती है आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और आपके करियर प्रोग्रेशन के लिए। तो ये सारी सुविधाएँ जो है, आप अगर एक बार यूनिवर्सिटी में एंटर कर जाते हो, तो आपका यूनिवर्सिटी आई कार्ड, इसके अलावा भी हेल्थ सुविधा है वहाँ पे, आपको 24/7 हेल्थ फैसिलिटीज़ है, मेडिकल हेल्थ सेंटर है, मेडिकल कॉलेज है, स्टूडेंट्स के लिए, सारी सुविधा वहाँ पे मौजूद है। अब हम एक स्टोरी सुनते हैं यहाँ पे, एक हमारे अहमदाबाद के एक स्टूडेंट है, शेख फैज़ान। फैज़ान, क्या आप हमारे साथ हैं? सुन पा रहे हो आप? फैज़ान, आप हमारे साथ हैं अभी? कोई एमपी से टेक्निकल टीम हमें हेल्प करे, फैज़ान को लोकेट करने के लिए। क्या ये फैज़ान जो है अगर पार्टिसिपेंट में है तो क्या बोल सकते हैं? खलील साहब? कैन ही? मैं ढूंढ रहा हूँ उनका नाम, वहाँ दिखाई तो नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा, टाइप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, शेख मोहम्मद साहब ने कहा यस डॉक्टर भाई, डॉक्टर जुल्फी भाई। शेख मोहम्मद, अच्छा शेख ओके, मोहम्मद फैजान, शेख मोहम्मद फैजान है क्या वो? हाँ, शेख मोहम्मद फैज़ान अगर है, अच्छा जी, हाँ हाँ, वो अटेंडीज में है। ओके। आप सो आप अब उनसे आप हम उनसे कुछ कहवाना चाह रहे हो क्या? हाँ, हम चाह रहे हैं कि फैज़ान जो है अपनी एक स्टोरी, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। अच्छा, मैं उनको जो है कोशिश करूंगा कि वो इसमें लाया जाए, पैनल में लाया जाए उनको। ठीक है, ठीक है। आप इसका जो है जब फैज़ान हमारे साथ जुड़ जाएँगे, तो उनसे एक स्टोरी सुनेंगे, उनकी अपने एक्सपीरियंस की कि वो कैसे गुजरात से चलो, अलीगढ़ में गए और फिर वहाँ पर जो है उन्होंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद जो है जामिया से उन्होंने इंजीनियरिंग किया और वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व थे। एनसीसी के कैडेट भी वो रहे थे। यूनिवर्सिटी को जो है रिपब्लिक डे में उन्होंने रिप्रेज़ेंट भी किया था और हॉल की जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी काफ़ी एक्टिव थे। मैं उनकी स्टोरी इसलिए हाइलाइट कर रहा हूँ क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र, केरल इस साइड, तमिलनाडु, इस टाइप के स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत कम आते। लेकिन अलीगढ़ में बहुत ही अच्छा माहौल है। मैं भी उसी तरह पहली बार गुजरात से गया था
कोई मेरा जानने वाला अलीगढ़ में नहीं था, पूरे यूपी में नहीं था बल्कि। लेकिन अच्छा। वहां पे जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो इतना कंड्यूसिव है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक अलग जगह पे आ गए हो। वहां पे जूनियर सीनियर जो है उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, वो आपको हर जगह मदद करते हैं और आपको हर तरीके से एक्सेल आप करो उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वहां पे आपको मिलता है। मुझे तो माशाल्लाह से वहां पे बहुत इज्जत भी मिली और मैंने अलीगढ़ से बहुत कुछ लिया भी है और अलीगढ़ ने मुझे बहुत दिया है, क्योंकि अलीगढ़ में जो आपको कल्चरल, स्पोर्ट और दूसरे होलिस्टिक प्रोग्राम्स वहां पे जो चलते हैं, पढ़ाई के अलावा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से आप वहां पे मुलाकात कर सकते हो और जो रेगुलर वहां पे प्रोग्राम होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और आपको प्रिपेयर करते हैं आने वाले जमाने के लिए। सिर्फ एजुकेशन नहीं, अलीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ की तहजीब और तरबियत के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे आपको उर्दू ज़बान और फिर उसके साथ में जो तरबियत, जो तहजीब, उसका एक अलग मज़ा है। तो हम फैज़ान से फैजान साहब, सुनेंगे। जी। जी फैजान साहब अगर पैनल में हैं, मुझे बताया गया है कि उनको पैनल में अपग्रेड किया गया है। वेरी अगर गुड। पैनल में हैं तो आप अनम्यूट करके बात कीजिएगा। जी फैज़ान साहब, आप बोल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी, हाँ जी जी बोलिए। हेलो। जी आपका आवाज़ सही आ रहा है, बोलिए आप। जी जी, अच्छा, जज़ाकल्लाह। जी, सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और एएमपी की टीम और जुल्फी भाई को, डॉक्टर जुल्फी भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर मौका दिया गया। हेलो। हाँ जी जी बोलिए बोलिए, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। जी जी, ओके। जी, सबसे पहले मैं एएमपी की टीम और डॉक्टर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर पैनल में मौका दिया बोलने का। और तमाम हाज़िरीन को मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद फैज़ान है और मेरी स्कूल लेवल की तालीम जो है अहमदाबाद के अंदर ही हुई थी, गुजरात में 8th क्लास तक। और उसके बाद फिर मैंने 9th क्लास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक स्कूल में, जिसका नाम एएमयू एबी का हाई स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन किया एंट्रेंस देने के बाद। और वहीं से मैंने 9, 10 और 11 कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने फिर एंट्रेंस देके डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3 इयर्स प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के अंदर, उसमें एडमिशन लिया। और क्योंकि मैं वहाँ के एएमयू के स्कूल से था तो मुझे वहाँ एक बेनिफिट ये रहा, जैसा कि जुल्फी भाई ने पहले बताया अपनी स्पीच के अंदर, कि मुझे वहाँ थोड़ा सा इंटरनल का कोटा मिला। इंटर्नशिप का मैं ऑलरेडी वहाँ का स्टूडेंट था और मेरा थोड़ा सा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मेरा कम मार्क्स पर वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। और वहाँ डिप्लोमा के अंदर जो है मुझे वहाँ पे एक हॉल अलर्ट हुआ, सर रोज मसूद हॉल। वहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा, बिल्कुल घर जैसा फ्रेंडली नेचर वाला माहौल था। और वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स ने हमारी हेल्प करी और वहाँ पे कई मौके मुझे मिले। वहाँ उस हॉल के अंदर जो है रीडिंग रूम था, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स के फुल्ली प्रोग्राम्स थे, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। कैरियर एंड गाइडेंस सेल था वहाँ उसके अंदर। और उसके अंदर मुझे फूड, एक मैस की जो फूड कमेटी होती है वहाँ पर फूड कमेटी का मेंबर बनने का मौका मिला। और सीनियर्स और जूनियर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। और मुझे वहाँ पे जो है डिप्लोमा के दौरान मुझे जो है 2 स्कॉलरशिप भी हासिल हुई, एक मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में मुझे मिली और एक फाइनल ईयर में मिली। और मैं वहाँ पर एनसीसी के अंदर भी स्टूडेंट था, नेशनल कैडेट कॉर्प का, जिसमें जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया। और तकरीबन 3 साल तक मैं लगातार वहाँ पे पार्टिसिपेट करता रहा उसके अंदर। और वहाँ से मुझे झांसी जाने का भी मौका मिला एएमयू की तरफ से। झांसी के अंदर 64 एसोल इंजीनियरिंग रेजिमेंट था, वहाँ पर मुझे एएमयू को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और एनसीसी की तरफ से भी एक बेनिफिट ये रहा कि मुझे जो है वाइस चांसलर स्कॉलरशिप अवार्ड रहता है, स्कॉलरशिप 10 बेस्ट स्टूडेंट को दिया जाता है साल में, तो वो भी मुझे दिया गया। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है हम सबके साथ आपकी स्टोरी शेयर की कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा था। वो डेफिनेटली जो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स है, जो पेरेंट्स है, इन सबको उससे काफी मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे गुजरात का बच्चा वहां पे जाके एक्सेल कर रहा है और वहां पे पढ़ाई कर रहा है। उनको ये भी पता चलेगा कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को वहां पे भेज सकते हैं। वहां पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत ही अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है
जहाँ पे बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम, और खास करके आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो इंक्लूसिवनेस में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए अलग से बैचलर तक जो है वो सेपरेट है, वहां पे अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज है। शेख अब्दुल्ला पापा मियाँ एक बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं। आपको कभी मौका मिले तो गूगल करके उनको जरूर पढ़िएगा कि शेख अब्दुल्ला का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वहां पे अब्दुल्ला हॉल है, वहां पे गर्ल्स स्टूडेंट्स वहां पे रहती है, वहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी वहां पर है, ग्रेजुएशन के सारे प्रोग्राम वहां पर चलते हैं अब्दुल्ला हॉल में। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी हॉल है, सरोजिनी नायडू हॉल है, बेगम सुल्तान जहां हॉल है। ये सारे स्टूडेंट्स, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हॉल है, और उसमें वो सारी चीजें जो है फैसिलिटीज अवेलेबल की जाती है, वो सारे मौके और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल की जाती है, ताकि गर्ल्स स्टूडेंट्स जो है वो एक इंक्लूसिविटी के साथ आगे बढ़े। जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी वहां पे सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल जो है वो बहुत फेमस है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे एक्सेल करते हैं। और दूसरे जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पेशल सेंटर है। तकरीबन हर प्रोग्राम में जो है यूनिवर्सिटी में वहां पे सीट रिजर्व्ड है। हर जगह जितनी भी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है वहां पे रैंप है, वहां पे जो आराम से जो है डिसेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। जो मदरसा के स्टूडेंट्स है उनके लिए सारे मदरसा, जितने भी मदरसा है वो सब जो है रिकॉग्नाइज्ड है। मदरसा ब्रिज प्रोग्राम चल रहा है, और उससे जो है आपको मदरसा के स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने का काफी एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट चल रहा है, और बहुत सारे मदरसा के बच्चे फायदा उठा भी रहे हैं इसका। जो स्टूडेंट्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं वो स्टूडेंट्स को के लिए भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलीगढ़ में जो है सबसे सस्ता एमबीबीएस होता है, सबसे सस्ता इंजीनियरिंग होता है। वहां जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस जो है 15,000 रुपए से कम है। ग्रेजुएशन की फीस 10,000 रुपए के तकरीबन, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए जितनी है। 8,000 9,000 रुपए की फीस है पूरे साल की। हॉस्टल फीस भी बहुत सब्सिडाइज्ड है। हॉस्टल फीस पर महीने जो है आपके 40 रुपए या 50 रुपए है। मैं महीने की बात कर रहा हूँ। पूरे साल में 300 रुपए 400 रुपए हॉस्टल फीस आती है। जो हमारी डाइनिंग चलती है वो 1,000 रुपए 1,200 रुपए पर मंथ 3 टाइम आपको खाना मिलता है, वेज एंड नॉन वेज। तो यूनिवर्सिटी काफी सब्सिडाइज है। तो जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, जो गांव से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका खर्चा कुछ ज्यादा है नहीं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, एलुमनाई एसोसिएशन बहुत है, सीनियर्स वहां पे बहुत है जो आपको हमेशा मदद करेंगे। प्रोवोस्ट वहां पे है, वो आपको हमेशा मदद करते हैं। तो मनी इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। पैसा कभी भी एक इश्यू नहीं है, और कोई भी अलीगढ़ का बच्चा है जिसका पैसे का प्रॉब्लम से आप उसको स्टडी कभी नहीं छोड़नी पड़ती। वहां पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तो पढ़ाई जो है वो उससे पहले आती है। और जैसे मैंने बताया, बहुत ही सब्सिडाइज फीस है हर जगह पर। आप देखिए राइट नाउ अभी जो है अनाउंसमेंट आई हुई है, जिसके बारे में भी हम एक स्लाइड देखेंगे। अनाउंसमेंट यूनिवर्सिटी की आई है सारे प्रोग्राम के लिए। अभी आप अटेंड कर रहे हो प्रोग्राम, तो सारे कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। सारे प्रोग्राम की अनाउंसमेंट राइट नाउ, एप्लीकेशन इज लाइव। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगी, जिसके भी डेट सीट आ गई है, जिसका भी शेड्यूल आ गया है। ये जो एडमिशन जुलाई अगस्त में होने थे, अब थोड़ा वो डिले होंगे बिकॉज ऑफ द कोविड। और जो सेमेस्टर एग्जाम होती है वो दिसंबर में होती है और अप्रैल में होती है। 2 सेमेस्टर होते हैं वहां पर। सेशन नॉर्मली अगस्त से चलता है, बिकॉज ऑफ द कोविड जो है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है इस बार। आप देखिए, अलीगढ़ को आप पहुंचना चाहते हो तो आप दिल्ली में ट्रेन से पहुंच सकते हो। दिल्ली सेंटर से, दिल्ली से आप अलीगढ़ के लिए ट्रेन भी आपको मिलेगी, बस भी आपको मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो है वो मथुरा का है। आप मथुरा चले जाइए, वहां से आपको बस मिलेगी अलीगढ़ के लिए। आगरा चले जाइए, आगरा से आपको बस और ट्रेन मिलेगी अलीगढ़ के लिए। तो ये यहाँ से इस तरह से आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं। और अगर फ्लाइट से आप पहुंचना चाहते हो तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है दिल्ली। और वहां से आप अलीगढ़ से बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, टैक्सी से जाइए। अलीगढ़ से दिल्ली जो है वो तकरीबन 130 किलोमीटर है। आप 3.5 घंटे का फासला है अलीगढ़ से दिल्ली का। तो आप जो है, ये मोड्स है, आप जहाँ पे भी हो ये मोड्स से आप जो है वहां पे रीच आउट कर सकते हो। और एक स्लाइड खास करके मैंने डिस्टेंस एजुकेशन की इसलिए रखी है क्योंकि कोरोना की वजह से अब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्रोग्राम भी चला रही है। रिसेंटली यूजीसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम को मान्यता भी दी है। और ये सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन बहुत पहले से, उससे पहले भी चल रहा है। उसमें यूनिवर्सिटी ने काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम वहां पे रखे हुए।
तो जो कोई भाई बहन वहां पे ट्रैवल ना कर सकते हो, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अलीगढ़ की डिग्री ले सकते हो और अलीगढ़ से पढ़ सकते हो। तो ये उसकी वेबसाइट है डिस्टेंस एजुकेशन। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे सिर्फ इतना लिखना है डिस्टेंस एजुकेशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, फौरन ये वेबसाइट खुल जाएगी। और ये वेबसाइट एएमयू की वेबसाइट में भी, वहां पे भी लिंक है, तो आप इसका भी फायदा उठाइए। और बहुत सारे प्रोग्राम्स नए ऐड हुए हैं, आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी वहां पे प्रोग्राम कर सकते हो। एएमयू जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में, नेशनल इंडियन रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में हमेशा से एक अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही है। ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा वहां पे रहता है कोई ना कोई रैंकिंग में। और ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ये आप कहीं पे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फोटोग्राफ ले लीजिए। जो भी चीजें हमने बताई, हमने डिस्कस की, उसके बाद हम आपके सारे सवाल के जवाब देंगे। लेकिन जो भी सवाल के जवाब हम आपको ना दे सके, तो ये वेबसाइट आपको सारे सवाल के जवाब दे देगी। ये वेबसाइट बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, और खास करके ये वाली वेबसाइट, जो सेकंड वाली वेबसाइट, amucontrollerexamination.com, आप amu.com, amu.ac.in लिखेंगे तो उसके अंदर ये वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको इस टाइप की वेबसाइट खुलेगी, जिसके अंदर आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं अभी, एप्लीकेशन फॉर्म गाइड टू एडमिशन 2021-22। आप ये गाइड टू एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो पूरी एक गाइडलाइन खुल जाएगी 160 पेज की, जिसमें किस तरह से एडमिशन लेना है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या लिंक है। और एप्लीकेशन फॉर्म सारे ऑनलाइन हो गए। पहले जब हमने एडमिशन लिया था तो हम पोस्ट से भेजा था हमने फॉर्म, हमने प्रोस्पेक्टस पहले मंगवाया था 7 रुपए का, फिर पोस्ट भेजा था, उस टाइप से होता था। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इट्स अ वेरी इजी। और आप जो है वहां पे टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर वहां पे आप एग्जाम, जो सेंटर में एग्जाम है, जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें एग्जाम नहीं है, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें डिपार्टमेंट एग्जाम लेती है, जैसे एमए इकोनॉमिक्स, एमए जियोग्राफी, इसको डिपार्टमेंट एजुकेशन लेती है, डिपार्टमेंट अलग अलग एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है, बीए इकोनॉमिक्स हो गए। फिर जो है कुछ प्रोग्राम ऐसे है जिसमें यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है, जैसे कि एमबीए की एग्जाम हो गई, बीएड की एग्जाम हो गई, लाइब्रेरी साइंस की एग्जाम हो गई, इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है। कुछ कुछ ऐसे भी प्रोग्राम है जैसे कि नीट के थ्रू मेडिकल में आते हैं, जो सेंट्रलाइज, जो इंडियन गवर्नमेंट में हमारे यहाँ जो सेंट्रलाइज एग्जाम होती है, उसके थ्रू भी आती है। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो है वो ये है amu.ac.in, जो मेन वेबसाइट है एडमिशन, और उसके सारी एडमिशन की डिटेल्स के लिए amucontrollerexamination.com ये वेबसाइट है। और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए CDE-AMU, सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन amu.ac.in, ये उसकी वेबसाइट है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप गूगल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डाल लेंगे तब भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और ये है फिलहाल के लिए सारे फॉर्म जो आए हुए हैं, उसके लास्ट डेट देखिए, अभी आने वाले 10 तारीख जो है बीए के लिए है, 8 तारीख बीए के लिए है, बीएससी के लिए भी 8 तारीख है ना। लेट फी के साथ जो है आप 15 तारीख तक जमा कर सकते हो। टेस्ट फी सारी रखी हुई है 650, 550, 750। जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए टेस्ट फीस एग्जेम्प्टेड होती है, जो कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए भी टेस्ट फी एग्जेम्प्टेड होती है, जिसके लिए आप गाइडलाइंस जो है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो आप एक बार वो कर लीजिएगा। मैं बल्कि आपको सब लोगों को गाइडलाइंस बता भी देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे ओपन करता हूँ, जिससे आपको जो है गाइडलाइन जो है वो पता चल जाएगी। आप देख पाते हो ये एएमयू का गाइडलाइन सेंटर है, ये है। जस्ट मिनट में आपको जो है ओपन करके एक एएमयू की जो गाइड, एडमिशन गाइड है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप वो देख लीजिए। ये है एएमयू की एडमिशन गाइड, देखिए आप, आपके स्क्रीन पे देख, आपको दिखाई दे रही है ना। इसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ये है, जितनी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करी, उसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। और यूनिवर्सिटी के 21-22 की गाइडलाइन है। आप इसमें गाइड टू एडमिशन है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कैसे एडमिशन लेना, कोर्स बाय कोर्स, ये देखिए ये सारे प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, एप्लीकेशन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, टेस्ट में किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे,
ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। प्रोग्राम के वाइज, टेस्ट के वाइज और एक्टिविटी के वाइज सारे कौन कौन से प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से हॉल है, कौन कौन से मदरसा है जो इसमें सिलेक्टेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस गाइडलाइन में है और ये अवेलेबल है आपको। कितने मार्क का टेस्ट होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, क्या टेस्ट की डेट्स होगी, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपको अवेलेबल है। और ये टेस्ट का जो है शेड्यूल है राइट नाउ, एमए के लिए, एलएलबी के लिए, एमबीए के लिए, बीएससी के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, ये सारी एग्जाम अभी फिलहाल जो है सारी एप्लीकेशन लाइव है। हमने ये एक सही समय पे ये राजस्थान चैप्टर एमपी का चांद मोहम्मद साहब और शकील लोहार साहब, इन दोनों को जो है मुबारकबाद कि इन्होंने एक बहुत सही टाइम चूज किया है। अभी आप लोग जो हो, आप और लोगों को भी इनकरेज कर सकते हो, आप अप्लाई तो करें, एक बार अप्लाई तो करिए, टेस्ट तो दीजिए, आपके पास डिस्टेंस स्टेट की कैटेगरी भी है, आप कोशिश कीजिए, अप्लाई कीजिए, वहां पे जाइए, एडमिशन अगर लीजिए। अगर आपका एडमिशन वहां पे होता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा एक एग्जांपल है, फैजान की स्टोरी हमने सुनी, वहां पे आपको एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और एक मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे कि अलीगढ़ में तराना में हम कहते हैं, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां में बरसेगा, अपने चमन पे भी बरसेगा, गैरों के चमन पे भी बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। और अलीगढ़ इसी तरह आपको जो है प्रिपेयर करती है एक नई लाइफ के लिए और चैलेंज के लिए। अब जो है हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इस संडे में इवनिंग में इतनी देर तक आप सब जुड़े रहे। हमने शुरुआत की थी तकरीबन 60 कैंडिडेट के साथ, अभी भी 60 ही है, कोई भी लेफ्ट आउट नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, एमपी का बहुत बहुत शुक्रिया, और गुजरात राजस्थान चैप्टर एमपी का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सारे जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए थे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, हमारा ईमेल एड्रेस है यहाँ पर। मोहम्मद शकील साहब बीटेक है जिन्होंने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया चांद मोहम्मद साहब के साथ, उनका ईमेल और उनका मोबाइल नंबर है। मोहम्मद फैजान जिनकी आपने स्टोरी सुनी, उनका मोबाइल नंबर भी है, वो गुजरात से है। तो आप इन लोगों को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई तकलीफ हो, अगर आपका फोटोग्राफ सही नहीं हुआ, आपके डॉक्यूमेंट किस तरह से जमा करना, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो आते हैं छोटे छोटे, जिनके लिए हम एमपी के थ्रू भी आप हमें रीच कर सकते हो, इस तरह से भी हमें रीच कर सकते हो। हम कोशिश आपको करेंगे कि जो जो आपके सवाल है उसका जवाब दिया जाए। अब हम आपके सवाल लेंगे और जो जो आपके सवाल है उसको कोशिश करेंगे जल्दी से उसको जवाब दिया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर जुल्फ़िकार भाई, आपने तो पूरी बात कर दी। अब सवालों का कोई चांस है कि नहीं पता नहीं, फिर भी देखते हैं। आपने तो बैकग्राउंड से शुरू किया था और हमें तो एएमयू का तराना भी सुना दिया, उसकी हिस्ट्री ओवरव्यू, जितने भी प्रोग्राम्स वहाँ है हर लेवल पे, उनके एंट्री पॉइंट्स और रिजर्वेशन कोटास, टेस्ट सेंटर्स, और फैजान भाई को भी बुलाया था, बहुत अच्छा लगा उनको सुन के, और पहुंचना भी दिखा दिया हमें। और ये वेबसाइट्स जो आपने दिखाए थे उससे तो सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। मैं आपको सुनते सुनते ऐसे ही देख रहा था। उनका एक और बात बता दूं, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का वेबसाइट भी है और बहुत सारे ओल्ड बॉयज एसोसिएशंस हैं सारे दुनिया में। इसीलिए कहते हैं कि अलीगढ़ में पढ़े लोग बूढ़े नहीं होते, हमेशा बॉयज ही रहते हैं। वैसे तो मैंने अलीगढ़ का एंट्रेंस एग्जाम लिखा था बीटेक के लिए। अच्छा। बस बहुत दूर हो गया, चेन्नई से एडमिशन की मिला था। पता नहीं आप प्रोफेसर सैयद अजीज खान साहब को जानते थे, केमिस्ट्री में थे वो, उनके साथ था, और उनके लड़के इरफान साहब के साथ ही एक ही साल थे हम लोग। तो एडमिशन मिला था लेकिन बहुत दूर हो गया तो मद्रासी में रह गए। तो चलिए आप देखते हैं और लोग क्या पूछना चाहते हैं। I wanted to inquire about a course. ये स्पेसिफिक कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इज इट अवेलेबल इन एएमयू? कौन सा इंजीनियरिंग? मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब वो 21-22 गाइडलाइन में उसका जिक्र नहीं है।
हाँ, लेकिन आप फिर भी डबल चेक के लिए ये जो गाइडलाइन हमने दिखाई वेबसाइट, वहां पे एक बार आप जरूर जाके देख लीजिए। हाँ, ग्रेजुएशन मैंने ऐसे ही आपको सुनते सुनते साइड में ये भी चेक कर रहा था। मैकेट्रॉनिक्स मैंने नहीं देखा। वैसे बच्चों को मैं ये बताऊंगा कि मैकेट्रॉनिक्स करना हो तो आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स बैचलर्स में कीजिए और फिर मास्टर्स में स्पेशलाइज कीजिए। राइट। अच्छा, आलिया हुसैन पूछ रही हैं, व्हाट should we need to prepare for BA LLB entrance so that we can get admission? ठीक है, मैं इसका जवाब खलील साहब में दे देता हूँ थोड़ा सा मुख्तसर सा। जी कि आलिया आप में दोनों, मुझे नहीं पता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल होगी या नहीं होगी, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जवाब दूंगा। पहले मैं इंग्लिश में दे देता हूं कि द BA LLB जो एंट्रेंस एग्जाम, BA LLB एंट्रेंस एग्जाम, द टेस्ट रिक्वायर्स mainly 3 components. One is that general studies, second is that Indo-Islamic culture, and third is English. इसकी जो है आपको गाइड मिल जाएगी वेबसाइट पे। आपको you can find all papers as well, and you can order on all papers and guidelines as well. There are all papers, sample papers is also available. There are also lot of blogs are available where people are helping each other about the LLB. और जो आप AMU की गाइड जो हमने यहाँ पे दिखाई है उसमें जो है टेस्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है आलिया, आपको शायद जवाब मिल गया होगा। आप जनरल स्टडीज तैयार कीजिए, इंडो इस्लामिक कल्चर तैयार कीजिए, इंग्लिश पे फोकस कीजिए। ये 3 मेजर कंपोनेंट है, उस पे आप फोकस कीजिए। इसके बाद नईम खान साहब, मेरे ख्याल से आपके आधे घंटे के अंदर वो इतना बेकरार हो रहे थे एडमिशन के लिए, आपने जब वो स्लाइड आने से पहले ही उन्होंने पूछा, सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। आपने तो पूरा मुकम्मल जवाब दे दिया। आप कुछ अब ऐड करना चाहेंगे या नहीं? एप्लीकेशन बस ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन पे जाइए, वहां पे गाइडलाइंस आपको मिलेगी और एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सिर्फ आपको फॉर्म भरते जाना है, जो जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो डालते जाओ, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे उसको अपलोड करते जाओ। तो आप उसमें अप्लाई करिए, लेकिन जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिए तो आप जरूर कैटेगरी देखिएगा। आप डिस्टेंस कैटेगरी में आते हो, नहीं आते हो, उसको जरूर क्लेम कीजिए आप। बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बाकी आप अगर इन एप्लीकेशन फॉर्म किसी को भी, कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर आप कहीं टेक्निकली अटक गए या कुछ हो रहा है तो आप हम तीनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको गाइड करेंगे पर्सनली, केस टू केस बेसिस पे। बाकी हमने प्रेजेंटेशन में दिखा ही दिया कैसे एप्लीकेशन करना है। जज़ाकल्लाह खैर। रहनुमा खिलजी ये पूछ रही है, सर कैन यू प्लीज गिव द डिटेल्ड एडमिशन information about admission in PhD? ठीक है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है क्योंकि यही एक प्रेजेंटेशन में मिस हुआ था। देखिए, PhD के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप नजर रखिए, क्योंकि जिस तरह से एडमिशन प्रोसेस ग्रेजुएशन और मास्टर्स की होती है, PhD की इस तरह से नहीं होती है। PhD की एक अलग से नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलेगी। आप रेगुलर चेक करती रहेंगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, तो वहां पे आपको पता चलेगा। और जब भी AMU के PhD के फॉर्म आते हैं तो और एम्प्लॉयमेंट न्यूज और दूसरे जो न्यूज़पेपर्स और दूसरे ब्लॉग्स है वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सब पेज वगैरह आप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर 1, आपको यूनिवर्सिटी की वेब आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको डेडलाइन मिस नहीं करना है PhD के लिए। और PhD के फॉर्म जो है वो डिफरेंट आते हैं, जैसे ग्रेजुएशन मास्टर प्रोग्राम उसके अलावा अलग से होता है। वैसे नॉर्मली साल में 2 बार PhD के एग्जाम नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी में आते हैं। PhD के नोटिफिकेशन के बाद आप अप्लाई करेंगे, मास्टर्स आपके लिए रिक्वायर होगा, 55% इज रिक्वायर्ड, 50 इन सम कोर्सेज। फिर उसके बाद जो है वो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको, अगर आपका नेट है या JRF है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, आप एग्जेम्प्टेड है। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपको PhD में एडमिशन मिलेगा। और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 8,000 रुपीज यूनिवर्सिटी नॉन UGC स्कॉलरशिप देती है। अगर आप JRF है तो आपको 27,000 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद MNF मौलाना आजाद फाउंडेशन स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करती है, वो भी आपको मिल सकती है अगर आपका नेट क्वालिफाइड है। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कीजिए, अलग से उसकी नोटिफिकेशन आती है। नंबर 2, एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है उसका सिलेबस ऑलरेडी दिया गया है,
यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। तो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस वहां का भी है सब्जेक्ट का। और नंबर 3, आप डेडलाइन को मिस मत कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर भाई। हमारे फारूक सिद्दीकी साहब ने सवाल ये पूछा है, हाउ मच परसेंटेज इज द इंटरनल कोटा रिजर्वेशन फॉर यूजी पीजी कोर्सेज? सारे कोर्सेज के लिए अलग है, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है उसके लिए 40 कुछ रिजर्वेशन 40 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 50% जो है आप 50% टू 45%, 45 टू 50% जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड है एडमिशन के लिए। इतने परसेंटेज आपके चाहिए। कहीं कहीं एग्जेम्प्टेड है डिफरेंट कैटेगरी के साथ, तो वो 40% भी एलिजिबल है। बट इफ यू आर मोर देन 50 देन यू डोंट नीड टू वरी, यू आर एलिजिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। उनका दूसरा सवाल ये है जिसका आपने जवाब दिया, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने इजाफा भी किया है। Does AMU offer distance learning courses as well? If yes, suggest some popular ones. कुछ popular courses distance learning? Okay. Yes. पॉपुलर प्रोग्राम जो है वो है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA, और अभी वो B.Ed भी स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी जो है BA और BCom ये प्रोग्राम है। BSc अभी स्टार्ट कर रहे हैं। रिसेंटली जो है AMU के जितने भी प्रोग्राम हैं वो अब ऑनलाइन हो चुके हैं, हालांकि वो डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं आते। तो ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी की एक मेन स्ट्रीम में आ गया, लेकिन जो डिस्टेंस के प्रोग्राम है उसमें ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रोग्राम काफी पॉपुलर है। आप उसके अलावा जो प्रोग्राम आप करना चाहे, जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम है BA, BSc, BCom, ये भी अवेलेबल है। B.Ed वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ प्रोग्राम जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर कर रही है AMU की। उसकी वेबसाइट है, आप जस्ट गूगल में टाइप कीजिएगा द डिस्टेंस एजुकेशन इन AMU, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी उसके एडमिशन के प्रोसीजर और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मेहर नौशीन हमें एक एक्सरसाइज भी दे रही है। उन्होंने हिंदी में टाइप किया है और हम हिंदी पढ़े हुए शायद 20 साल हो रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं। अच्छा, राजस्थान और दूसरे स्टेट्स में की बच्चियों के लिए क्या सुविधाएं हैं? मेरी बेटी ने 12th पास आउट किया है साइंस मैथ स्ट्रीम से, उसका एडमिशन करवाना चाहता हूँ, एडमिशन प्रोसेस बताइए। शायद आपने बताया था, लेकिन एक समराइज कर दें। आपने तो बहुत ही सही हिंदी पढ़ा है खलील साहब, माशाल्लाह। और बहुत बढ़िया। देखिए, मेहर नौशीन साहिबा जो भी हो, आपकी बेटी को जरूर आप एडमिशन कराइए साइंस और मैथ्स स्ट्रीम में। AMU में साइंस में बहुत अच्छी प्रोग्राम्स है, फिजिक्स में भी आप वो एलिजिबल होगी, मैथमेटिक्स में भी एलिजिबल होगी, और BSc के और प्रोग्राम्स भी होगी। मैं बस आपको सिर्फ ये बताऊं कि वहां पे AMU में एक गाइडलाइन है जिसकी हमने इस प्रेजेंटेशन में जिक्र किया। आप उस गाइडलाइन में देखिए, चांद मोहम्मद साहब, उनका एक नंबर यहाँ पे दे दीजिए अगर उनको इंग्लिश में गाइडलाइन, कुछ ऐसे होंगे पेरेंट्स जिनको इंग्लिश में जो गाइडलाइन है एडमिशन उसको पढ़ने में तकलीफ हो, तो हम उनके लिए हिंदी में थोड़ा आसान से समझा देंगे पर्सनली। आपके लिए ये है कि आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है BSc के लिए, जिसके लिए 8 जुलाई लास्ट डेट है। तो बल्कि आज ही आप एप्लीकेशन कर लीजिए, आज या कल कर लीजिए एप्लीकेशन। सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड होंगे, सब कुछ, पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। तो आप एक बार एप्लीकेशन कर लीजिए। एप्लीकेशन के बाद फिर हम आपको गाइड करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली अपनी बच्ची के बारे में पूछा है और ये भी आपने सवाल किया कि वहां बच्चों के लिए माहौल कैसा है। AMU जो है वो एक सेफेस्ट यूनिवर्सिटी है गर्ल्स के लिए। वहां आप ग्रेजुएशन के लिए अब्दुल्ला कॉलेज है, वहां पे अब्दुल्ला हॉल है, विमेंस कॉलेज है, और वहां पे सारी सिर्फ लड़कियां पढ़ती है, क्योंकि ग्रेजुएशन तक AMU में को एजुकेशन नहीं है, ओनली मास्टर में को एजुकेशन है। ग्रेजुएशन के अगर प्रोफेशनल कोर्स है MBBS और इंजीनियरिंग, वहां पे को एजुकेशन है। BSc BA ये जो है वो गर्ल्स ओनली प्रोग्राम है, और वहां पे सारी सुविधा इन कैंपस है। हॉस्टल भी वहां पे है, कॉलेज भी वहां पे है,
और सारी जो यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो सुविधा चाहिए वो सब वहां पे है। और वहां पे आउटिंग के भी नियम होते हैं, हॉस्टल के भी नियम होते हैं, और जो भी वो हॉस्टल के गाइडलाइंस होती है उसके अनुरूप होते हैं। मेरे ख्याल से एएमयू एक बहुत अच्छी स्पेस है अपनी बच्ची को भेजने के लिए, और एएमयू जो है आप बिल्कुल एक इत्मीनान होके भेजिए, वहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल भी है। मैं आपको हाईली इंकरेज करना चाहता हूँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन है, आज ही एप्लीकेशन फॉर्म भरवा दीजिए। आपका माइक अनम्यूट कर दिया है खलील साहब, आपने अनम्यूट कर दिया आपका नहीं माइक। मैंने माइक- अच्छा हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप जवाब देते जा रहे हैं फिर भी सवाल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो चलिए, अभी नाम इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये जानना चाहते हैं हाउ टू जॉइन एमबीबीएस इन एएमयू। ओके, सो एमबीबीएस जो है वो आपका नीट के थ्रू होता है, और आप अब तो सारे जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है प्रोग्राम्स अब तो एक सेंट्रलाइज टेस्ट हो गया है। तो एमबीबीएस का जो है वो नीट के थ्रू ही होता है ना। इवन आप एनआरआई कोटा में भी आप करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तो यू नीड दैट नीट स्कोर। तो अब तो एक सेंट्रलाइज टेस्ट हो गया। तो एमयू का पहले मेडिकल टेस्ट होता था, अब जो है वो एक कॉमन उसमें आ गया है। अच्छा, ये एनआरआई आपने कहा, तो दो सवाल हैं, एक एमबीबीएस और एक बीटेक के बारे में। मेरे ख्याल से एनआरआई इशू किया है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एमबीबीएस फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स? आपने कह दिया। I was filling the form for BTech. It is not showing the form for NRI. When will the NRI forms be available? ओके, सो ठीक है, ये अच्छा सवाल है। एनआरआई के जो कोटा होते हैं वो नॉर्मल एडमिशन हो जाने के बाद होता है। वो यूनिवर्सिटी जो है अपने वेबसाइट पे उसको वो करती है। नॉर्मली होता ये है कि आपको टेस्ट तो देना ही पड़ता है, इवन आप एनआरआई हो या कुछ भी हो। फॉरेन नेशनल के लिए एक डिफरेंट है, लेकिन आप अगर आप एनआरआई कोटे में जाना चाहते हो तो आपको मेरिट पे तो आना ही पड़ता है। तो वो मेरिट के बेस पे ही आपको अलॉट करते हैं। अगर आप एनआरआई भी हो और आप मेरिट में भी उस थ्रेशोल्ड में आते हो तो आपको ऑफर हो। तो इट्स सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम होता है, वो अलग अलग फीस होती है। मेडिकल के लिए अलग, हर साल वो चेंज भी होती है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक फीस नहीं है। डिफरेंट ईयर डिफरेंट फीस होती है, और वो डॉलर में होती है। तो डॉलर के भी एक्सचेंज रेट बढ़ते कम हो जाते, तो उस हिसाब से भी उसकी इंडियन करेंसी में अलग वैल्यू हो जाती है। तो आप एनआरआई कोटे के लिए जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कीजिए। ये नॉर्मली जब ये प्रोसेस एडमिशन की हो जाती है उसके बाद होता है, उसके साथ नहीं। आप नॉर्मली जो प्रोसेस उसका हिस्सा बनिए, अगर आप एनआरआई है तब भी। फिर उसके बाद आप एनआरआई कोटे को क्लेम कीजिए। इंजीनियरिंग के लिए भी यही जवाब है, मेडिकल के लिए भी यही जवाब। जज़ाकल्लाह। एक और सवाल है, इज बीबीए अवेलेबल इन एएमयू? ये नशरा पूछते हैं। सॉरी, क्या अवेलेबल है? बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए अवेलेबल नहीं है। अच्छा। जी। और सुहेल रजा पूछ रहे हैं, क्या लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं? हाँ सुहेल, मिल तो सकते हैं। आप थोड़ा वेबसाइट पे सर्च कीजिए, नहीं तो फिर एक काम कीजिए, मुझे या तो शकील साहब को या फैजान साहब को हमें बताइए। हम लोग एक ऐसा काम भी करें कि ये सारे क्वेश्चन पेपर्स, एएमयू के टेस्ट की गाइड्स, ये सब कुछ अलीगढ़ में अवेलेबल है। वहां पे उनकी बुक्स घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो हम क्या करें कि हम अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करके एक एक सेट वगैरह मंगवा के एएमपी को, तो एएमपी जो है वो अपने अलग अलग स्टेट के चैप्टर्स को उसको डिसेमिनेट करे। तो जो बच्चे हैं स्टेट वाइज, उनको फोटोकॉपीज या इस तरह से वो दे पाए। लेकिन आप कोशिश कीजिए गूगल करने की, आपको मिल सकते हैं। सारे ये अवेलेबल है, एग्जाम पेपर, पुराने पेपर, उसकी गाइड, ये सब कुछ चीजें अवेलेबल है ना। थोड़ा सा आप एफर्ट लीजिए, नहीं तो फिर हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके लिए। अब्दुल्ला खान साहब पूछ रहे हैं, सर कैन यू गिव सम टिप्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एएमयू एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 11? फॉर क्लास 11th, राइट? जी। ओके, सो क्लास 11th में जो है, आप सिंपल यही है कि आप इंग्लिश जो आपका क्लास 10th के लेवल का है, कुछ मैथमेटिक्स, और आप जनरल जो मैथमेटिक्स क्लास 10th के लेवल का होता है, और आप जो है जनरल स्टडीज,
इसका जो एक सिलेबस है वो अवेलेबल है गाइडलाइंस में, और इसके कुछ पेपर्स भी आपको मिल जाएंगी। एएमयू की इंटर की गाइड भी आती है, वो भी आप सर्च करेंगे तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें बहुत फेमस है, अवेलेबल है। आप बस ये चीजों को खास ध्यान रखिए कि अलीगढ़ इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे आपका इंग्लिश थोड़ा इतना हो कि आप समझ जाए चीजों को। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इतना होना चाहिए कि आप इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन में आप वहां सर्वाइव कर जाए। जो 10th के लेवल का आपका मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज और 10th लेवल का साइंस है, आप जब +2 में आप देंगे एडमिशन, तो उसी बेस पे आपको मौका मिलेगा कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहेंगे। आर्ट्स में जाना चाहेंगे, कॉमर्स में जाना चाहेंगे, साइंस में जाना चाहेंगे, डिप्लोमा में जाना चाहेंगे। जितने मार्क्स अपने आपके अच्छे आएंगे उतने आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आप चूज कर सकते हो उसमें से कहाँ जाना है। जज़ाकल्लाह। दानिश समीन साहब पूछ रहे हैं, also is there any engineering in Zakir Hussain Engineering College where maths is not required with 12th class results? मैथमेटिक्स के बगैर वो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग। जी। अच्छा, सर, is there any course for BSc in medical science in AM? बीएससी मेडिकल साइंस तो नहीं है, लेकिन बीएससी जो है आपको पैरामेडिकल में मिल जाएगा। बीएससी नर्सिंग है, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट है, बीएससी इन ऑप्थाल्मोलॉजी है। तो आप एक बार एजुकेशन जो गाइडलाइंस है 2021 की एडमिशन गाइडलाइंस, उसमें देखिए पैरामेडिकल कोर्स है। बीएससी इन मेडिकल साइंस ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है। मेडिकल साइंस अपने आप में एक स्ट्रीम है, उसके अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो अगर आपका मतलब ये है पूछने का कि कोई पैरामेडिकल का कोर्स है, तो हाँ, बीएससी के बहुत अच्छे पैरामेडिकल कोर्स एमयू में है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मोहम्मद मुजाहिद मारियम खानी और मेमन फाहिल बेसिकली सवाल ये पूछ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम का कैसे प्रिपेयर करना है। इसके बारे में हम आंसर दे चुके हैं ना, सारे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आंसर दे चुके कि ज्यादातर जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम की वो है गाइडलाइन, उसमें जनरल जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ये चीजें तो कॉमन रहती है। इंग्लिश, जनरल स्टडीज, इंडो इस्लामिक कल्चर, ये आपके तकरीबन सारे प्रोग्राम में है। अगर आप फिर एमएससी बीएससी करना चाहो तो उसमें वो वाला कंपोनेंट बढ़ जाता है, साइंस का कंपोनेंट। अगर आप सोशल साइंस में जाना चाहो तो सोशल साइंस का कंपोनेंट बढ़ जाता है। आर्ट्स में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसका कंपोनेंट बढ़ जाता है। 11th में जाना चाहो तो वो 10th के लेवल का आ जाता है। तो आप समझने की मोटे तौर पे ये कोशिश कीजिए कि इंग्लिश, जनरल स्टडीज एंड इंडो इस्लामिक कल्चर, ये 3 चीजें जो है वो रहती है सारे एंट्रेंस एग्जाम में एएमयू में, unless and until any specific entrance exam like MBBS and BTech, उसका एक अलग शेड्यूल होता है, उसका एक अलग एंट्रेंस उसकी जो गाइडलाइन होती है। लेकिन बाकी जो प्रोग्राम है बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, ये सबके एंट्रेंस एग्जाम तकरीबन ये पैटर्न पे होती है। कंपोनेंट कम और ज्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट और आपकी स्ट्रीम और आपका लेवल, बीए का लेवल है, एमए का लेवल है या पीएचडी का लेवल। इसके एग्जाम के पुराने पेपर्स, उसका सिलेबस, ये सारी चीजें आपको एडमिशन गाइडलाइन में दिया गया है। मुजाहिद साहब ये भी पूछना चाह रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स एडमिशन बीटेक एडमिशन के लिए क्या है? मिनिमम मार्क आपका जो है बीटेक में वो तकरीबन 45 है ना, 45 है। आप एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कैटेगरीज है जो 5% एग्जेम्प्ट भी है, वो 40 पे भी जो होता है। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद इरफान सैयद साहब पूछ रहे हैं, प्लीज गाइड फॉर पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ एरिया एज वर्किंग प्रोफेशनल इन पब्लिक हेल्थ। ओके, सो पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ तो नहीं है, लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन है वहां पर एएमयू में। आप जो है कम्युनिटी मेडिसिन में आप कर सकते हो वहां पर। तो पब्लिक हेल्थ की पीएचडी ये सच नहीं है एएमयू में, ये स्ट्रीम नहीं है पब्लिक हेल्थ की, लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन है, तो आप वहां पे वो कर सकते हैं पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम पीएचडी जो है एएमयू में नहीं होती है, फुल टाइम पीएचडी होती है, क्योंकि यूजीसी का अब नियम है कि आपको 2 इयर्स की रेसिडेंशियल तो कंपलसरी करनी पड़ेगी।
रहमतुल्लाह खान साहब पूछ रहे हैं, सर व्हाट अबाउट एडमिशन थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, इज इट अवेलेबल फॉर स्विमिंग? यस यस, स्विमिंग के लिए आपका अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी में जो जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उसमें स्विमिंग भी है, और हमारे यहाँ बहुत ओलंपिक साइज का स्विमिंग है। तो स्विमिंग इज अवेलेबल। व्हाट यू रिक्वायर इज आपका स्विमिंग का डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ब्लॉक लेवल का या स्टेट लेवल की कोई आपकी चैंपियनशिप में जो आपने पार्टिसिपेट किया हो या कोई मेडल अचीव किया हो, उसके सर्टिफिकेट आपको चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ेंगे। जब आप एप्लीकेशन करो तब आप वहां पे क्लिक कर लीजिएगा डिबेट कैटेगरी, स्पोर्ट कैटेगरी, फिर आप उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो फॉर्म के साथ ही। स्विमिंग इज अवेलेबल। अहमद खान साहब पूछ रहे हैं, कैन वी गेट एडमिशन फॉर आवर चाइल्ड इन 9th क्लास इन एएमयू? कर सकते हैं आप। आपको आपके बच्चे को वहां पे हॉस्टल भी मिलेगी। अब तो बहुत सारे माँ बाप जो है वो अलीगढ़ में शिफ्ट हो जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो 9th में मुझे नहीं पता अहमद खान साहब आप कहाँ से है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन 9th का बच्चा छोटा होता है, आई एग्री। तो मेरा पर्सनल मानना है, एडमिशन तो आप बिल्कुल करा सकते हो, 9th का वो भी होता है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि 10th के बाद ज्यादा बेहतर रहता है। 11th मतलब 10th के बाद ही बेहतर रहता है, लेकिन 9th में अगर आप एडमिशन कराओ तो आप करा सकते हैं। एडमिशन यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहां पे हॉस्टल भी मिलती है, और हॉस्टल का नाम है मिंटो सर्कल। बहुत ही फेमस हॉस्टल है, बहुत ही फेमस हॉस्टल। वहां पे स्कूल भी है, वहां पे हॉस्टल भी है, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज है बच्चों के लिए वहां पर। अच्छा, फारूक सिद्दीकी साहब थोड़ा क्लैरिफाई कर रहे थे कि उनका सवाल जो है एकेडमिक मार्क्स के बारे में नहीं था, इंटरनल स्टूडेंट्स का कोटा, मतलब जिन्होंने +2 या अपना इंटरमीडिएट एएमयू में किया है, उनका क्या कोटा होता है बीटेक में? अच्छा अच्छा अच्छा, उसका कोटा जो है वो तकरीबन जो है वो 50-50% होता है। 50% जो है होता है, लेकिन आपको पता होगा कि एएमयू जो है वो अभी माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए जो है इसका हाई कोर्ट में उनका जो है एक स्टे आया हुआ है। तो एडमिशन गाइडलाइंस को एक बार आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो चेंज भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है वो 50% इंटरनल होता है, 50% एक्सटर्नल होता है। ये एएमयू का वो होता है। उसकी इंटरनल जो होते हैं उसको फायदा ये होता है क्योंकि उनकी कंपटीशन जो है वो इंटरनल बच्चों से होती है, उसकी एक मेरिट लिस्ट बाहर पड़ती है। तो जरूरी नहीं है कि ये इतने ही परसेंटेज हो। तो एक्सटर्नल की जो मेरिट होती है, या तो ये समझ लीजिए कि एक्सटर्नल की जो मेरिट जाती है वो 5% एवरेज ज्यादा जाती है इंटरनल के हिसाब से। सिंपल। अगर 55% जाती है एक्सटर्नल की तो 50% होगी इंटरनल की। तो आलिया हुसैन ये पूछ रही थी कि बीए एलएलबी के लिए को एजुकेशन है? बीए एलएलबी के लिए टेस्ट होता है वहां पर, है ना? नहीं, वो ये पूछ रही है कि को एजुकेशन है, मतलब लड़कियां भी, यस दोनों लड़के लड़कियों के लिए है? अच्छा जी, को एजुकेशन है बीए एलएलबी के। और इरफान साहब वो फॉलो अप कर रहे थे कि आपने जो जवाब दिया कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में, इज इट अवेलेबल फॉर आयुष ग्रेजुएट्स? मेरे ख्याल से वो एमबीबीएस के लिए अवेलेबल है इरफान साहब। अच्छा। वो जो है एमबीबीएस के लिए अवेलेबल है, आयुष के लिए आई एम नॉट श्योर। बट आयुष के लिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो वहाँ पे अजमल खान टिब्बिया कॉलेज है, वो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स वहाँ पे है ना, उसका आप हिस्सा बन सकते हो। मेमन फाहिल साहब बीए ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर। कुछ फर्क है क्या बीए अप्रोच में, मतलब सब्जेक्ट तो अलग है बिटवीन बीए और बीटेक और वगैरह? बीए ऑनर्स के लिए आपकी जो स्ट्रीम हो सकती है अलग अलग, आर्ट्स या सोशल साइंस, है ना। ये दो स्ट्रीम है जिसमें आपका वो होता है। अगर आप बीए आर्ट्स की कैटेगरी में करेंगे तो वहां पे आपका लैंग्वेज का थोड़ा ज्यादा होगा, सोशल साइंस में करेंगे तो आपका वहां पे जनरल स्टडीज का ज्यादा होगा। कॉमन, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि बीए बीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो खास करके 3 चीजें होती है। इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, ये सारी चीजें आ गई, जनरल स्टडीज और इंडो इस्लामिक कल्चर। ये 3 चीज जो है उसमें डिवाइडेड होता है पेपर, जिसमें जनरल स्टडीज में लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाती है, थोड़ा सा आपका, है ना, सीरीज कंप्लीट करना, ये सब चीजें होती है। मैथमेटिक्स हल्का सा थोड़ा आपका, अलजेब्रा और ये सब। तो ये सारी चीजें रीजनिंग हो गई, लॉजिकल रीजनिंग।
तो आप जो है सिंपल आप जनरल स्टडीज पे फोकस कीजिए, इंग्लिश पे फोकस कीजिए, इंडो इस्लामिक कल्चर पे फोकस कीजिए। आप एएमयू बीए एडमिशन गाइड, एएमयू बीए एडमिशन टेस्ट गाइड, ऐसी बहुत किताबें अवेलेबल है मार्केट में। अब ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल भी है, और अगर आपको नहीं मिलती है तो हम तीनों में से किसी एक को कांटेक्ट कीजिए। हम कोशिश ये करेंगे कि ये सारी एक एक गाइड जो है और पेपर्स ये एमपी के थ्रू आपको भिजवाए। आप फिलहाल के लिए एप्लीकेशन भर दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम है ना, अभी हम नेक टू नेक चल रहे हैं, वो एप्लीकेशन में चल रहे हैं। एप्लीकेशन भर दीजिए, फिर उसके बाद इसका भी इंतजाम इंशाल्लाह हो जाएगा। बल्कि एक प्रोग्राम भी कर लेंगे, अगर आप लोग एप्लीकेशन कर देंगे तो हम 1 महीने के बाद 15-20 दिन के बाद एमपी के प्लेटफॉर्म से स्पेसिफिकली उनके लिए करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी, यही टॉपिक पे एक प्रोग्राम ऐसा कर लेंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पे बात करेंगे, पेपर के कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे और सारी स्लाइड पे उसके क्या क्या सिलेबस है वो दिखाए जाएंगे आपको, क्योंकि ज्यादातर सवाल इस पे आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम पे। तो खलील साहब हम इसके बारे में सोच सकते हैं जी इंशाल्लाह। और पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट है क्या? पीएचडी के लिए एज लिमिट नहीं है। तो मजहरुल हक साहब पूछ रहे थे, और यूसुफ खान साहब, उनका सवाल थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा था, वो एलएलएम प्रोग्राम के लिए पीएचडी है क्या पूछ रहे हैं शायद। एलएलएम तो मास्टर प्रोग्राम होता है लॉ के लिए। हाँ, लॉ के लिए उसी में पीएचडी। हाँ, फिर एलएलएम के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। यस, एलएलएम के बाद पीएचडी। और ये सवाल है, नाम नहीं दिया है, यूजी में एडमिशन लेना ज्यादा चैलेंजिंग है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चैलेंजिंग कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, चैलेंजिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये तो माइंड से बिल्कुल निकाल लीजिए। और चैलेंज हो तो भी क्या है, चैलेंज तो लेनी ही है ना हमें, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, है ना। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आप लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदेंगे और आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना, चैलेंज है या नहीं है वो तो बात की बात है, देखी जाएगी, है ना। आप अल्लाह का नाम लीजिए, एडमिशन आप अपने बच्चों को अच्छा प्रिपेयर कीजिए, टेस्ट दीजिए, है ना। चैलेंज कहाँ नहीं है, हर जगह चैलेंज है। जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, आपके सवाल हो तो आप सवाल टाइप कीजिएगा। अहमद खान साहब जो 9th स्टैंडर्ड के एडमिशन के बारे में पूछ रहे थे कि उन्होंने फॉलो अप किया है कि कैन वी गेट एडमिशन राइट नाउ इन 9th स्टैंडर्ड? नो, अभी 9th के फॉर्म नहीं आया है, अभी फॉर्म नहीं है। स्कूल आप ये कीजिएगा अहमद साहब कि आप वेबसाइट की, यूनिवर्सिटी वेबसाइट के स्कूल एजुकेशन जो होती है वहां पे वो है, उसकी एक लिंक हम आपको कहीं भेज देंगे, लेकिन आप सिंपल वेबसाइट पे एमयू की जाके स्कूल एजुकेशन देखिएगा, उसकी अलग से नोटिफिकेशन आती है स्कूल की। तो जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, सारे सवालों का आपने जवाब दे दिया। मेरे ख्याल से कितने थे, ऑलमोस्ट 40 थे, और 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं हमारे चांद भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सबको थैंक करें और दुआ करें। चांद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र रहा है जिस तरह का ये सेशन रहा, बड़ा वंडरफुल सेशन रहा। जुल्फिकार अली साहब ने एएमयू एडमिशन से रिलेटेड जिन पहलुओं को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने एक एक पहलू पे रोशनी डाली, वो हम सब के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई, इसमें कोई शक नहीं। ठीक इसी तरह जिस तरह के सवाल लोगों ने उठाए, जिस तरह के सवाल पूछे, इससे भी इस वेबिनार की दिलचस्पी और उनके इंटरेस्ट का पता चलता है कि किस तरह लोगों की दिलचस्पी इस सब्जेक्ट को लेके थी। वो जानना चाहते थे कि एएमयू में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस अंदाज में वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को उस तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी पहलुओं पे जुल्फिकार साहब ने बहुत बेहतर तरीके से रोशनी डाली, सारे पहलुओं को उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। मैं शुक्र अदा करूंगा खासतौर पे जुल्फिकार अली साहब का कि इन्होंने बहुत कम टाइम में, मतलब परसों इनसे बात हुई और सिर्फ 2 दिन, उसी दिन उन्होंने फाइनल करके और ये तैयार हो गए कि हम इस तरह की वेबिनार कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हमने ध्यान रखा कि राजस्थान से ज्यादा
पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स इससे जुड़े, ताकि जो कमी, जैसा कि उन्होंने वेबिनार में बताया कि राजस्थान और गुजरात के बच्चे वहाँ कम जा रहे हैं, तो इन बच्चों में भी अवेयरनेस फैले, वो भी इस की अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस और समझे कि किस तरह करियर बनाने में एएमयू का बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। इसी के मद्देनजर हमारी कोशिश ये रही कि ये इस पे एक वेबिनार हो। इन्होंने हमारा साथ दिया और बहुत कम टाइम में ये तैयार हुए। तो मैं खास तौर पे शुक्र अदा करूंगा जुल्फिकार सेठ साहब का कि इन्होंने अच्छे तरीके से इस वेबिनार को आयोजित करवाया। साथ ही मैं शुक्र अदा करूंगा हमारी एएमपी की नेशनल टीम का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे, एमपी राजस्थान की रिक्वेस्ट पे इस वेबिनार का आयोजन रखा। मैं अब्दुल रजाक साहब, सैयद खलील अहमद साहब और एमपी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अब इस वेबिनार में साथ हमारे जुड़े रहे। और साथ के साथ इस वेबिनार में हिस्सा लेने वाले हर वो स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर जिन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई, मैं उन सबका भी शुक्र अदा करूंगा। और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि किस तरह वो एएमयू में एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह एएमयू नेशनल बिल्डिंग के रूप में, खासतौर पे कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। इसी थैंक्स के साथ मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ने हमें ये जो तौफीक अता की है इस वेबिनार को आयोजित करवाने की, इसको सुनने की, समझने की, तो हमारी ये जो कोशिश है वो अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उन लोगों को ठीक इसकी समझ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसका फायदा कम्युनिटी को, आम लोगों को अच्छे तरीके से मिले और आगे से आगे हम इस तरह की वेबिनार, इस तरह के सेमिनार आयोजित कर सकें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दिला सके, उनका करियर बना सके और दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की कामयाबी की तरफ वो आगे बढ़ सकें। इस तरफ की हमारी कोशिशें आगे चलती रहे। इसी दुआ के साथ मैं फिर से आप सभी का थैंक्स अदा करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब ने इस वेबिनार में हिस्सा लिया, वक्त दिया और बच्चों के करियर को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चांद भाई तो हमारे सीनियर लीडर हैं और राजस्थान को जिस तरह से वो डायरेक्ट करके लेके जा रहे हैं और उनके सारे प्रोग्राम्स जो है हमारे लिए एक रोल मॉडल हो गए। जज़ाकल्लाह खैर चांद भाई। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। खलील साहब, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जी आपको कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं उन सब का ईमेल एड्रेस एमपी के पास होगा, तो हम इन सबको ईमेल से जो लिंक है वेबसाइट की, एएमयू की, ये वेबसाइट की लिंक और हमारी जो एडमिशन गाइडेंस जो है हमारी, ये वेबसाइट जो एजुकेशन एडमिशन गाइडलाइंस 2021, वो अगर उसको हम भेज दे तो अगर कहीं किसी से मिसप्लेस भी हो गया तो एटलीस्ट उनके पास ये सोर्स है। वहां पे एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे करना सब कुछ खुल जाएगा एक ही साथ, तो उनको जो है वो एक मिल जाएगा उस ईमेल से, है ना। मेरे हिसाब से जुल्फिकार साहब, हम क्या करते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है उसका लिंक शेयर करते हैं इसके साथ, तो लिंक शेयर करने से जो है ना, एक बार दोबारा से भी जो पार्टिसिपेंट है उसको देख सकते हैं और जो जानकारी आपने दी है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वेरी गुड चानू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बढ़िया। इट वाज वेरी वेल प्रोफेशनली मैनेज्ड। ये मैं बहुत सारे वेबिनार में अटेंड करता हूँ, लेकिन जिस तरह से एएमपी का जो कल्चर है क्वेश्चन आंसर का, वेबिनार का, दिस इज रियली अ टॉप क्लास, कटिंग एज प्रोफेशनलिज्म। सो यू ऑल डिजर्व a wonderful big congratulations. Many participants already congratulating you on the way of conducting webinar. This is really a very pragmatic and very professional. मुबारक हो आप सब। जज़ाकल्लाह खैर जुल्फिकार भाई। हमारे साथ चांद भाई जैसे लीडर्स हैं तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। और जो लोग जुल्फिकार भाई का कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं उन्होंने तो ईमेल दे दिया, आप ईमेल कर लें और वहां जो चाहिए आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।